ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਾਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਾਕ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे मन ऐसा संन्यास धारण कर, रे मन ऐसो कर संन्यासा। मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन जैसा ही तू सदन नूं घर नूं समझ, उजाड़ जैसा ही अपने घर नूं समझ, और घर दे च जो कुछ भी है सब कुछ नूं उजाड़ समझ। निराश होके उदास होके तू परमात्मा दी निरंकार दी तलाश कर। ऐसा इस वास्ते कह रहे ने, जो संसार तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो निरंकार दी तलाश करेगा ही नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। आम मनोविग्यानक कहते हैं, हिरदे नूं निराश करना बड़ा औखा है। एक उदाहरण देने, जब लग श्वास तब लग आस। हर श्वास दे नाल कोई ना कोई आस ते चलती है। मुश्किल है। इस मुश्किल का हल सानू गुरु नानक देव जी महाराज ने दिता है। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। आसा माए निराश वलाए, निहचो नानक करते पाए। निश्चय करके जान, उन्हों करते पुरख की प्राप्ति हो जाती। किसनों? आसा माए निराश वलाए। जो आशा दे च निराश होकर रहिंदा है, ये किस तरह होगा? चलो आशा ते चलती है श्वास दे नाल, निराश होना बड़ा औखा है। जे आशा पूरी हो गई है तो फिर तू इस तरह समझ, ये इस वास्ते पूरी हुई है, प्रभु की आशा भी यही सी, वो भी यही चाहता सी, तां हुई है। एक जे आशा नहीं पूरी हुई, इच्छा नहीं पूरी हुई, तो प्रभु कुछ होर चाहता है, उहदी इच्छा कुछ होर है, तो उहदी रजा दे च राजी हो। जिहड़ा इस ढंग नाल जीवदा है, निहचो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो नूं करते पुरख दी प्राप्ति हो जाती। और एक गल बड़ी लाजमी है, संसार ही महान है, और इतनी प्रबल आशा है, निरंकार दी आस पैदा ही नहीं होती। इतना प्रबल संबंध जोड़िया होया सुख दा परिवार नाल, पदार्थां नाल। परमात्मा की तड़प ते जन्म ही नहीं लैंदी, जन्म ही नहीं लैंदी। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लाजमी कह दिता, बन से सदन। सदन नूं, घर नूं उजाड़ जैसा समझ, जंगल जैसा समझ। की है तेरे घर दे? मैं दो नुकते, दो बादशाहां दे तुहाडे सामने रखा, जो आम जगत इसे ढंग नाल जींदा है। भारत देश जिसने मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर, उहदे विचार, भारत दे जिस दे नाल मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर।
ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ, ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੇ ਨਗੀਨ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਗੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਖੋ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੋ ਲਈਏ। ਖੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਰੇ, ਦਰਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਰੇ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾ ਏ ਬਿਰੇ, ਦਰਸਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾ ਏ ਬਿਰੇ। ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਾਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ कहले ने, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम ही जाना। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਆਖਿਆ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਸ਼ਰਮ ਅਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਸੌਦਾਏ ਵਿਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਚਸ਼ਮੇ ਬੀਨਾਏ ਵਿਦੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਗਰੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾਲੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਾਲੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਤਾਲੀਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਰਬੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसा रोशन दिमाग, ऐसा रोशन ज़मीर बंदा जिहदी रूह दे इतनी चमक है, दमक है। बहादुर शाह नूं कह दिता, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इशारा कर दिता, ऐसा रोशन ज़मीर मनुख हिंदू नहीं चाहिए। ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੁਰਾਦ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਰਾਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨੱਸ ਜਾਓ ਹੁਣੇ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਣੀ ਹੈ,
अपना दिमाग बचाना है, अपना ईमान बचाना है, यह घोड़ा लो नस जाओ। समझ गया नंद लाल, क्योंकि आए दिन घटनावां जो घटदियां सन सामने सन। मुराद नूं कहंदा है कित्थे जावां, सारे देश दा बादशाह ते औरंगजेब है, सारा देश इसदी मुट्ठी च है, सारी जगह इसदी फौज, इहदे सिपाही, इहदे एहलकार, और सारे भारत दे च इसदा हुक्म चलदा है। मुराद कहंदा है एक जगह है उत्थे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। वो जगह है आनंदपुर, तू बच जा, नस जा। रात नूं भाई साहब सफर करते हैं, दिन नूं किधरे छुप जाते हैं। मंजिल दल मंजिल तय करके ये आनंदपुर साहब पहुंचे ने। भरे दरबार दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाके सजदा किया है, मत्था टेकिया, एक पासे बैठ गए। समाप्ति ते नंदलाल जोदड़ी करदा है, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे रहना है। सतगुरु कहने लगे बड़ी खुशी की गल है, रहो। दूजे दिन बेनती करते ने नंदलाल, महाराज आपने इत्थे रहन की इजाजत मैनू दे दी है, तो फिर कोई सेवा भी बख्श दो, कोई सेवा करया करा। हुण सतगुरु कहते हैं तू की कर सकदा है, पहले ये दस की कर सकदा है। भाई साहब कहते ने दुनिया मैनू रोशन ज़मीर कहती है, रोशन दिमाग कहती है। मैं शायर हाँ, विद्वान हाँ, कलम दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ। आप कोई सेवा बख्श दो। तू रोशन ज़मीर है, रोशन दिमाग है, कलम दा धनी है, जबान दा धनी है, दिमाग दा धनी है। तू इत्थे रहना है? हाँ महाराज मैं रहना है। सेवा भी करनी है? हाँ महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू लंगर दे भांडे ही मांजिया कर। बड़ी चोट लगी, कहता है गुरु ने विद्या की कदर ही नहीं की थी। बादशाह ने बैठने वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी। ये चांदी की कुर्सी ते बैठ के बादशाहां दे बच्चियां नूं पढ़ाते सन। ये कहते जाके भांडे मांजा, पर हुण करे कि किधरे जा भी नहीं सकता। इतिहास कहता है दूजे दिन भांडियां दा ढेर, मांजण वाले भी बड़े, ते पुराना जमाना राख नाल मांजने, हथ गाले आउंदे ने। भांडे मांजण लग पे। भाई साहब दा सौरा परिवार मुल्तान दे च रहिंदा सी। उत्थे तक खबरां पहुंच गईयां कि नंद लाल आगरे तो भज के छुप छुपा के आनंदपुर साहब पहुंचे ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नंद लाल की कदर नहीं की थी, भांडे मांजण ते लगे। मंजिल दर मंजिल तय करके ये सौरा परिवार, ये शरीक आनंदपुर साहब पहुंचे ने। पर कई दिन भांडे मांजदियां मांजदियां रब्बी तरंगिया दे लहरां दे च रहिंदियां हर मनुख दा अपना ओहरा हुंदा है, आभा हुंदा। उत्थे सब ब्रह्म ज्ञानी रसक पुरुष, फिर सतगुर, उन्हां दा ओहरा आभा। कहते ने पूਰਨ पुरख की जिहड़ी आभा है, मस्तक के कोलों जिहड़ा तुसीं गोल दायरा एक चक्कर देखते हो, इनू संस्कृत दे आभा कहते हैं। एक पूਰਨ पुरख का ओहरा आभा घट तो घट 10 मील तो लैके 15 मील तक प्रभावित करता है। उस आभा के दायरे च जिहड़ा आ जाता है, अगर वो थोड़ा जिहा भी जगियासू है तो असर अंदाज हो जाता है।
इस वास्ते कहा गया साध के संग नहीं किछ घाल दर्शन भेटत होत निहाल। उस आबाद च रहिंदियां सिर्फ भांडियां दी कालख ही भाई साहब नहीं धो रहे सन, मन दी कालख भी धुल गई सी। विद्या दा गरूर भी धुल गया, इलम दा गरूर भी धुल गया। अज शरीक पहुंचे ने राख नाल लिबड़े हुए कपड़े देख के, मुंह मत्था हथ कालख नाल भरिया होया देख के शरीक समझाण लग पे ने कित्थे आ गए, इहदे नालों बेहतर सी तू मुल्तान आ जांदा, असी तैनूं कोई यतन करके भेज देंदे, गजनी भेज देंदे, कंधार भेज देंदे। कित्थे आ गए? इन्ना छोटी दा आलम फाजल हो के सारा दिन भांडे मांजना। साढ़े तक खबरां पहुंचियां। हुण शरीकां नूं भाई साहब समझांदे ने, उन्हां दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। नसीहा ता चंद गोई, नसीहत करण वाले हो नसीहत ना करो, शिक्षा देण वाले हो शिक्षा अपने कोल रखो। नसीहा ता चंद गोई, किस्सा है वा अजूपन बज़्मे मस्तां अस्त, इंजा किस्सा हो अफसाना नेस्त। ये मस्तानियां दी महफिल है, ये रंग रतनियां दी महफिल है। नंद लाल पागल हो गए, नंद लाल पागल हो गए। थोड़ी नसीहत नंद लाल तक नहीं पहुंचेगी, पैरों के थल्लों लंघ जाती। एक पासे करो, मैं रंग रतनियां दी महफिल दे च आ गया। सतगुरु भी पहुंच गए। शरीक जो उच्ची उच्ची डांट के समझा रहे सन, वो भी सतगुरु ने बोल सुने। जैसे सतगुरु पहुंचे ने, नंदलाल सजदा करते ने। महाराज कहते ने, नंदलाल वाकई असी तैनू कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। सुने हैं बादशाह ने तैनू बैठण वास्ते चांदी की कुर्सी दी सी, और तैनू 500 मोहरा महीने की तनख्वाह मिलती सी। तैनू उन्होंने रहने वास्ते हवेली दी हुई सी, नौकर चाकर दिते हुए सन। तेरा होर भी मान सन्मान काफ़ी सी, असी तैनू कुछ नहीं दे सके। हुण नंदलाल दे बोल सुनना तो फिर मैं अगे चला। हाथ जोड़ के नंदलाल कहने ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त। ये नंदलाल दा ग्रंथ दीवाने गोया दे ये नज़म दर्ज है। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व कौज कुल कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, एक दफा कोई भिखारी, गदाए गदागर भिखारी नूं कहंदे ने, एक दफा कोई भिखारी थोड़े इस नेड़े गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नूं लत मार देंदा है, ठुकरा देंदा है। जिहड़ा लंघ जाए वो दो जहाना दी बादशाही नूं ठुकरा देंदा है। मैं ते दर मल के बैठा, मैनू किस चीज़ की कमी है? गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वज़ाओ के कज कुलाही नेस्त। तमन्ना ही नहीं रही बादशाह होने दी, धन संपदा दी तमन्ना ही नहीं रही। हे गुरुदेव, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां प्रभु दी प्यास पैदा हो गई है। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां रब्बी तड़प पैदा हो गई है। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां संसार तो मन निराश हो गया। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां पदार्थां तो मन निराश हो गया है। हे गुरुदेव, प्रभु दी आस पैदा हो गई। हुण मैं दो जहाना दी बादशाही नूं भी ठोकर मारदा। इस दर ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरावां,
जितने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, निरंकार की तलाश नहीं करेगा। इस जीवन तो निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। ये लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है। निराश जिहड़ा फिर हो जाता है वो घर नूं जंगल जैसा उजाड़ जैसा समझण लग पैंदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माए उदासा। अपना घर ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। परिवार ही सब कुछ है और इसे वास्ते ही जीवना है तो निरंकार कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला मुगल सम्राट बाबर, वो कहंदा रोज़ो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा निस। क्यों निराश हुई है, क्यों उदास हुई है? संसार बड़ा रंगीन है, नित नमा रूप, नित नवे रंग रूप जब दुनिया दे मौजूद ने। क्यों उदास हुई है, क्यों निराश हुई है? नहीं होता। ये दुनिया बड़ी रंगीन है। इसनों पंजाबी च कहते हैं, ये जग मिठा अगला कहन डिठा, छड्डो अगले की गल छड्डो। है बड़ी है दुनिया, बड़ा कुछ है। यही बाबर कह रहा है। जितनी अकल मोटी होवे संसार वड्डा हो जाता है, जितनी अकल मोटी छोटी होवे संसार महान हो जाता है, और जितनी अकल वड्डी हो गई, महान हो गई, उतना संसार बेमैनी हो जाता है। ये भी महसूस करते हैं। पहला मुगल सम्राट तो ये कहता है। इस तो ही पता चलता है कितने कठोर तबीयत का सी, कितनी मोटी अकल का सी, कितनी सीमत बुद्ध का ये मालिक सी। पर आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिहदे हथों अंग्रेज़ां ने दिल्ली का तख्त प्राप्त किया, उन्होंने पकड़ के बर्मा दे रंगून की जेल दे बंद किया। विचारा मरिया भी उत्थे, उहदी कब्र भी रंगून दे। ये फकीर तबीयत बंदा सी। 5 वक्त नमाज तो इलावा घंटा 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू दा जप भी करदा सी। तो इनू रस भी आन लग पिया सी। ਉਹਦਾ अनुभव मैं थोड़े सामने रखा जो अपनी नज़म विच कहंदा है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, ये सारा संसार उजाड़ है। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी वेख सच कर जानिया। कहंदा बहुत वड्डे शहर दे च रहिंदा है। महाराज कहंदे बहुत वड्डी उजाड़ दे च रहिंदा। मनुख ते मनुख नाल टुटिया होया है। किहड़ी गल दा जो है शहर है। मनुख ते मनुख नाल टुटिया है, बंदा ते बंदे नाल टुटिया है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं, कोई मेला नहीं। कहंदा सारा संसार मैनू उजाड़ प्रतीत होंदा है। बहादुर शाह जफर बंदगी करदियां करदियां कुछ खेड बन गई, अनुभव मिल गया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। इस कच्ची दुनिया विच पक्की जिंदगी किसनों मिली है? इस कच्चे संसार विच पक्के महल किस दे बने हैं? किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। अगे चल के कहंदा है उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। कहंदा खुदा तो बड़ी लंबी उम्र में लेके आया 4 दिन। इनू एक होर फकीर इंज कहंदा है जो कुछ मैं हाँ ऐ मेरे खुदा, अद्धा समा अद्धी शक्ति मेरी लग गई उसनों छुपाण विच, मैं उसते पढ़दे पाए। और जो कुछ मैं नहीं हाँ, अद्धी जिंदगी अद्धी शक्ति मेरी लंघ गई उसनों प्रगट करन विच। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए होगी। कहंदा जो कुछ मैं नहीं हाँ
उसनूं ते मैं प्रगट करदा रहा, और जो कुछ मैं हाँ उस ते मैं पढ़दे पांदा रहा। बस जिंदगी मेरी इस तरह ही लंघी है, जीवन मेरा इस तरह ही लंघे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ए अरमान, ए इच्छावां, ए तड़प, ये कह रहा है अभ्यासियों नूं फरियाद पिया करदा है, ये मेरे हिरदे चों कढो, किसी होर जगह जाओ। दरअसल एक अवस्था जद बनती है, जप करदियां करदियां ते इच्छावां बोझ लगदियां ने, ते बंदा इच्छावां नूं कढना चाहता, निकलदियां ने। भरतरी रोंदियां होइयां कहंदा है वैराग शतक दे विच, और शायद आपनूं पता भी भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 शब्द उच्चारण कीते आसा राग दे विच। प्राणायाम दी साधना नाल इसने अपनी उम्र बड़ी लंबी कर लई सी, बहुत लंबी कर लई सी। ये गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। साधना का फल सिर्फ इतना ही मिलिया सी कि उम्र लंबी हो गई, क्योंकि प्राणा नूं रोकण दी विधि आ गई, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 6-6 महीने साल श्वास चलते ही ने, तो उम्र लंबी हो गई। उम्र लंबी ते हो गई, जीवन सफल ना होया। जीवन लंबा ते हो गया, सफल ना होया। गुरु नानक दे चरनां ते मत्था टेक के इसने कुछ प्रश्न कीते ने, उन्हां प्रश्नां दा खोलना ते विचार इस वक्त वो तो मैं थोड़े सामने नहीं रख सकांगा। पंक्तियां रख दियां 3 शब्दां दियां। सिफती रत्ता सदवै रागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भरतर जोगी, खीवा अमृत दारे। ये पहला शब्द। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रे भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आड़। इन्ना महान ज्ञान सुन के भरतरी हाथ जोड़ के कहंदा थोड़ा पंथ केड़ा है, किस पंथ दे बानी हो तुसी, थोड़ा केड़ा पंथ है। पंथ रस्ते नूं कहंदे ने, थोड़ा केड़ा रस्ता है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इस्लाम एक रस्ता है, जैन एक रस्ता है, बौद्ध एक रस्ता है, हिंदू एक रस्ता है, सिख एक रस्ता, सब मार्ग ने परमात्मा तक पहुंचण दे रस्ते ने। रस्ता कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई विंगा टेढ़ा हो सकता है, पर सारे रस्ते प्रभु दे रस्ते ने। सारियां ही नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, पर सारियां दे अपने अपने रस्ते ने। गंगा अपने रस्ते ते जांदी है, गोदावरी अपने रस्ते ते, सिंध अपने रस्ते ते, इराक दा दजला फिराक अपने रस्ते ते। जद सागर दे च मिल जांदे ना दजला, ना फरात, ना गंगा, ना जमुना, ना सतलज, ना ब्यास, सागर दे सागर ही सागर। जैसे जब कोई लीन हो जाता है, सब कुछ खो जाता है। ये भी मैरिज करा, फिर उसकी हालत बन जाती है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संतवंत। वो तो धर्म का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, हुण रस्ते ते है ही नहीं, वो पंथ दे च है ही नहीं। पंथ ते जो चलता उन्होंने कहते हैं पंथी, उर्दू दे च कहते हैं राही। पंथ नूं उर्दू दे च कहते हैं रस्ता, रस्ते ते जिहड़ा चले राही। संस्कृत दे च कहते हैं पंथ, जिहड़ा चले उन्होंने कहते हैं पंथी। तो राही अजे रस्ते दे च, जो पहुंच गया वो राही नहीं, होते घर दे च पहुंच गया। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से थी संबंध। थोड़ा पंथ केड़ा है? भरतरी गुरु नानक ते प्रश्न करता है, की पंथ है थोड़ा, किस पंथ दे तुसी बानी आ? इन्ना ज्ञान, इतनी सूझ, इतनी समझ, बड़ा आनंद मिले है। ऐ पातशाह बहुत ज्ञान मिले है, और इंज लगे है जीवन में अजाई गवाया है लंबा करके। लंबा ही होया है, सफल नहीं होया। थोड़ा पंथ केड़ा है? हुण गुरु बाबा अपना पंथ दसते ने, ध्यान नाल सुनना। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। नाना वरन अनेकं, दुनिया दे जितने मजहब ने, धर्म ने, रस्ते ने, वरन ने, जात पात ने,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਤਜ ਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਐ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ। ਐ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ। ਜੋ ਤੋਏ ਭੋਗਨ ਹੇਤ ਭਜੇ ਤੁਮ ਸੇਵ ਤਿਸੇ। ਐ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਕੀ ਨਿਸਪ੍ਰਿਯਨ ਕੀ ਚਹੀਅਤੀ ਨਾ ਲਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਧਨ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਤਜ ਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ, ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਰਤਰੀ ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਤਜ ਮਾਤ ਰਮਾ ਅਬ ਤੂੰ ਭਜ ਆਨ ਕਿਸੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਹਸਰਤੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹੀਂ ਔਰ ਜਾ ਬਸੇ, ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਦਿਲੇ ਦਾਗਦਾਰ ਮੈਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ। ਇਹ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੋਟ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੇ ਇਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਇਸਨੇ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਾਠ ਜਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। शब्द फिर इंज लगता है जिमें तीर। हुण मैं दोहरावां, तीर तन नूं लगे खून निकलेगा,
तीर मन नो लगे लोभ निकलेगा, विकार निकलणगे। तीर तन नो निकले लगे, खून निकलदे आया मनुख तड़पदा होया मनुख करदा है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बहुता खून निकल जाण नाल कंठ खुश्क हो जाता है, पानी मंगदा है। शब्द दा तीर मन नूं लगे, अंदरों लोभ निकले है, विकार निकले ने। ये तड़पदा होया मन, तुसीं आखोगे तड़पदा क्यों है? मन की जिंदगी लोभ है, ये जीवदा ही लोभ दे च है। मन की जिंदगी विकार है, ये उहदे च जीवदा है। जैसे गुरु का शब्द बाण बन के इसनों लगता है, ये चों विकार निकलते हैं, ये चों लोभ निकलता है। ये फिर तड़पदा होया मन करता है वाहिगुरु वाहिगुरु। ये वाहिगुरु करना कुछ और है, ये वाहिगुरु आखना कुछ और है। हुण साहिब कहते मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। पीड़ ते बड़ी होवेगी। ईश्वर ने एक नियम बना रखा है, एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है एक स्त्री ने, तो प्रसूत की पीड़ा तो लंघना ही पेगा, लंघना ही पेगा। रब ने नियम बनाया है, प्रभु ने नियम बनाया। एक तन दे चों दूसरे तन नूं जन्म देना है, एक पीड़ा तो लंघना ही पेगा। अपने मन दे चों ही परम आनंद नूं जन्म देना है, परम रस नूं जन्म देना है, परम प्रकाश नूं जन्म देना है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, बड़ी भयंकर पीड़ा तो लंघना पैंदा। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। बड़ा जिक्र है। समा इजाजत तो नहीं पिया देंदा, पर सामने आ गया भाई साहब का एक सवैया, मैं थोड़ा सरवण करान लगा। ये पीड़ कितनी कहती है। जब शब्द का तीर लगता है, मन चों विकार निकलते हैं, तो प्रभु की तड़प पैदा होती है। ये पीड़ कितनी आती है, ये तुसी सुनो। भाई साहब भाई गुरदास को, भाई साहब का यह सवैया है। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। जीवदा जागदा मनुख ज्वाला बलदी अग दे च गिर जाए, जलन लग पै। उस जीवदे जागदे मनुख नूं जलदियां जो पीड़ा आउंदी है, मानसिक ते शरीरक, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बहुत गहरे पानी दे च डुब रहे होवे, गोते खा रहे होवे, बचण की कोई उम्मीद ना होवे। ऐसी हालत विच मानसिक ते जो शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहंदे ने, वो भी इकट्ठी करिए। इस सारी पीड़ा का बकायदा आप अपने ध्यान विच रखी जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा नाग फनियर सप, जहरीला नाग डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, प्राण निकलने शुरू हो जान। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होती है, भाई साहब कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे ते खून वगरे होवे। ऐसी हालत दे च जिहड़ी पीड़ा है, इनू भी इकट्ठा करिए। रोम रोम जख्मी होवे। एक फकीर ते कहंदा है, हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। पुराने जमाने जरा का कम, सर्जन का कम वैद लोग करते सन, उन्होंने जरा कहते सन, मरम पट्टी वो करया करते सन। ये फकीर कहता है रोम रोम जख्मी है, तो रोम रोम दे जो खून वग रहा है, फाहा केड़ी केड़ी थां ते रखेगा, पट्टी किस किस थां ते बनेगा, केड़ी जगह बनेगा। रोम रोम जख्मी है। हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है।
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ 'ਚ, ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗਊ ਦੇ 'ਚ ਬਧੂ ਬੰਸ ਵਿਸਵਾਸ ਬਦ ਕੋਟ ਹਤਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਇੰਨ ਤੜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ? ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂੜਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਗਾਤ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨਗਤ ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਗਊ द्विज बधु बंश विश्वास बद कोट हत्या तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे पिया के विछो पल एक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है ना, उस एक पल दे च जिहड़ी पीड़ा है, ये सारी पीड़ा एक पल दे समान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुण तुसीं खुद अंदाजा लाओ भगत कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है, नाम अभ्यासी कितनी वड्डी पीड़ा तो लंघदा है। लागी होए सो जाने पीर राम भगत अणयाले तीर, तो पीड़ तड़पा देवेगी, रुला देवेगी। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चले जियो। गुरु नानक ने इस दे उत्ते एक बड़ा सोहना ख्याल दिता है, बड़ा हंस राग दे वो भी कह रहे हैं। मैं रोवंदी सब जग रुना रुनड़े वणों पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। मैं रोई रिजक दी खातर सारे ही रोंदे, पशु पक्षी तक रोंदे ने रिजक ना मिले। मैं रोई परिवार दी खातर, बच्चियां दी खातर, सारा जगत रोंदा है, पशु पक्षी तक भी तड़प उठते हैं अपने बच्चियां वास्ते। विछोड़ा बच्चियां दा सारियां नूं तड़पा देंदा है, विछोड़ा रिजक दा रोजी दा सारियां नूं तड़पा देंदा है, तड़पा के रोना भी निकल आंदा है। महाराज कहते एक ना रोना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों विछोड़ी। प्रभु विछोड़ा ते तेरा भी है, न तेरे विछोड़े ने तड़पाया ना ही रुलाया है।
मैं रोई रिज़क दी खातर, तेरी खातर नहीं। मैं रोई परिवार की खातर, तेरी खातर नहीं। मनुखों के रोने सुन लेना, परिवारक रोने होने ने, संसार के रोने होने, रब के रोने कोई नहीं। एक ना रोना मेरे तन का विरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। साहिब कहते विछोड़ा तो प्रभु तेरा भी है, तेरे विछोड़े ने मैनू तड़पाया भी नहीं, रुलाया भी नहीं। वाकई संसार का नक्शा बड़ा सोहना खिटे, तड़पदा तो है संसार, रोंदा भी है संसार, पर यह रोना रब्बी रोना नहीं है। दो चशम मन के दरियाए अजीम उलशान ए गोया, जहर अचकम बवद शादाबिए सरबाग बागें जा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, मेरी अखां दे निकले दो हंझू जो प्रभु प्यार दे च निकले ने, इन्हां ने जन्मां जन्मांतरां दे पाप गुनाह सब धो दिते, सब धो दिते। खैर मैं बहुत जो है लमकावा। लागी होए सोचाने पीर, तीर लगेगा पीड़ ते होवेगी। इनू कबीर बयान करते हैं जिस ढंग नाल, वो कह के मैं समाप्ति करें इस वक्त। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। बाणी दा बाण लगे, निराश हो जाएगा, संसार तो उदास हो जाएगा। पर बाण लगे है, उस बाण ने की कीता है? कबीर कहते हैं गूंगा हुआ, गूंगा हो गया। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, 10 पाप आउंदे ने, उहदे 4 पाप जबान दे हुंदे ने। चलो 10 की मैं गिनती करते हैं। मिथ्या बोलना, व्यर्थ बोलना, कौड़ा बोलना, फिक्का बोलना, ये 4 पाप जबान दे ने। झूठ बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, व्यर्थ गपशप फिजूल, घंटा 2 घंटा में व्यर्थ बोली जाना, ये 4 पाप जबान दे ने। 3 पाप मन दे ने, किसी की जान बारे बुरा सोचना, किसी के माल बारे बुरा सोचना, किसी की इज्जत आबरू बारे बुरा सोचना। 3 पाप तन दे ने, किसी की जान खो लेनी, किसी का माल खो लेना, किसी की इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 दोख बनते हैं, 10 पाप बनते हैं। कई दफा जीवन के रिपीट होंगे रहते हैं, हज़ारां बन जाते हैं। कबीर कहते हैं गूंगा हो गया, हुण मैं मिथ्या नहीं बोलता, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलता, हुण मैं कोड़ा भी नहीं बोलता, हुण मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता। गूंगा हो गया। तीर लगे है, जिहड़ी पीड़ हुई है, इनू भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर इस पीड़ दे जिहड़ा रस आया है, कबीर कहते हैं ये भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहते हैं भोले नूं, भोला हो गया। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। चलाकियां नाल संसार दे विच बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, पर निरंकार नहीं मिलता। इस वास्ते साहब दी बाणी साहब कह रही, कबीर कह रहे ने, चतुराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माद होसें लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। परमात्मा भोले भा नाल मिलदा। साडे देश दे एक महान योगी शिव जी नूं भोला शंकर, भोला नाथ कही जांदे ने। भोला भोला पता किस नूं कहंदे ने? जो अंदरों बाहरों एक है। बच्चे भोले होंदे ने, संत भोले होंदे ने, भगत भोले होंदे ने, अंदरों बाहरों एक होंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, औरंगजेब तू चलाक है, तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। मैं तेरे ते भरोसा नहीं कर सकता। अगर सद कुरान बाखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। मैं तेरी कुरान दी कसम ते भरोसा नहीं कर सकता। तू झूठा, तेरी कुरान दी कसम भी झूठी। तू बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। कबीर कहते भोला हो गया। हाफिज एक ईरानी संत ते कहंदा है, 1000 जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस। 1000 जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो बाहर दिखाई दे रहा है वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वही इसकी जबान ते है। कहंदा एक जिंदड़ी नहीं, 1000 जिंदड़ियां मेरे जैसियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां। हाफिज ऐसा कहंदा।
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ, ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਭੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਪੈਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਭਜਾਈ ਕਰਦੀ, ਭਜਾਈ ਕਰਦੀ।